So students, now we are moving to the next topic of this chapter, that is agents of pollination, right? So earlier we have discussed about the pollination, types of pollination. There are two types of pollination we have discussed, right? So one is your self pollination and other is your cross pollination. Self pollination further categorized into two categories. One is autogamy, other is zettanogamy, right? When pollination occur in the same plant, same flower, that is autogamy, right? When pollination occurs in the same plant but the flower is different, that is zettanogamy, right? Second is your cross pollination. Cross pollination is includes xenogamy, different plant, different flower, right? So already we have discussed. Now we are discussing the agents for pollination, right? So there are two agents of pollination. One is your biotic agent, right? One is your biotic agent, other is your abiotic agents, right? Biotic agent means your living, right? So living जो होंगे वो बायोटिक में आएंगे और जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक एजेंट्स में आएंगे. तो बायोटिक एजेंट्स में क्या होंगे? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, राइट. एबायोटिक एजेंट्स में क्या होंगे? नॉन लिविंग, एयर है, विंड, वाटर, राइट. दीज आर योर एबायोटिक एजेंट्स. Now the first category they are telling is your pollination by the wind. How does the pollination by wind will happen, right? So it comes under abiotic agent. So the word written here is your anemophily. Anemophily. When the pollination occurs with the help of wind, that type of pollination is known as anemophily, right? So here in this case, the pollen grains are light, right? So the pollen grains are light, non-sticky, right? Non-sticky, right? Well exposed stamens, right? Well exposed stamens, feathery stigma. The stigma is feathery to trap airborne pollen grains, right? Single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence, right? So here in this case क्या होगा? इसमें जो pollen grains होंगे हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, चिपकेंगे नहीं, और उनके जो स्टेमन्स होंगे वो क्या होंगे? वेल एक्सपोज्ड होंगे. फेदरी स्टिग्मा होगा ताकि वो pollen grains को ट्रैप कर सके, ठीक है, ट्रैप कर सके, ठीक. फिर उसके बाद क्या लिखा होगा? क्या लिखा हुआ है? सिंगल ओव्यूल है एक ओवरी के अंदर, और क्या बना रहे हैं वो? न्यूमरस फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होकर क्या बना रहे हैं वो? इनफ्लोरिसेंस को बना रहे हैं, ठीक है ना. इनफ्लोरिसेंस, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना. आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल क्लियर. ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरिसेंस एज वेल एज एक्सपोज्ड स्टेमन्स, राइट. एक्सपोज्ड स्टेमन्स इसमें देख सकते हो, ताकि ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके. क्लियर? चलें. So the example is corn cob, right? Corn cob, or in case of grasses, poaceae, gramineae, right? Gramineae. These are other examples. Now the tassels we can see in the corn cob. It consists of stigma and style. They wave in the wind to trap the pollen grains, right? So the tassels will move and they will trap the pollen grains. Clear? Now your second category is your pollination by water, right? So pollination by water, the word written here is हाइड्रोफिली. अगर वाटर से पॉलिनेटेड होगा तो क्या वर्ड आएगा यहाँ पर? हाइड्रोफिली, राइट. वहाँ पर कौन सा था वो? एनिमोफिली, ठीक है ना. इससे पहले हमने जो वर्ड देखा था वो कौन सा था? वो कौन सा था? ये वाला एनिमोफिली था, राइट. सो इट लिमिटेड टू 30 जेनरा. कितने? 30 जेनरा तक इसकी लिमिट है. मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स आते हैं इसमें, ठीक है ना. मोस्टली इट इंक्लूड्स द मोनोकोटिलिडन्स. वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स, राइट. हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर एक मीडियम है किसके लिए? रेगुलर मोड मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए. किस में? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, और किस में? टेरिडोफाइट्स में. सम ब्रायोफाइट्स
and pteridophytes that their डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। हमें पता है जो ब्रायोफाइट्स होंगे या टेरिडोफाइट्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो लिमिटेड होगा, वो हर जगह नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर, ठीक है, वाटर की नीड जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? जो ब्रायोफाइट्स हैं या टेरिडोफाइट्स हैं, राइट, ब्रायोफाइट्स जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, राइट, और फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स उनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लिमिटेड है। क्यों है? बिकॉज उनको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट। फिर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में दो क्या इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दो कौन कौन से? एक तो वेलिसनेरिया, ठीक है, एक हाइड्रला, ठीक, ग्रोज इन फ्रेश वाटर, ठीक है, किस में ग्रो होंगे? वो फ्रेश वाटर में ग्रो होंगे। फिर इसके अलावा और कौन से हैं? सेवरल मैरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा, ठीक है ना, इसके अलावा और कौन सी ग्रासेस है? जैसे जोस्टेरा हो गया, ठीक। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वाटर हाइसिंथ का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वाटर हाइसिंथ हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 ऑफसेट का जो एग्जाम्पल था, ठीक है, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, याद आया? तो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है, जिसे लोटस कहते हैं। फ्लावर एमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, जो फ्लावर होगा वो कहाँ जाएगा? वो लेवल से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? वो वाटर के लेवल से ऊपर। ये एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। दिस द स्टॉक, ठीक, ये फ्लावर हो गया, ठीक है ना, फ्लावर हो गया। इट इज़ पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, किससे पॉलिनेट हो रहा है वो? इंसेक्ट से और विंड से, एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। क्लियर? किसके केस में होगा वो? वाटर हाइसिंथ के केस में। और कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर लिली। फ्लावर कहाँ जाएगा? वो अपने लेवल से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये लेवल। और ये कौन पॉलिनेट करेगा इसको? इंसेक्ट करेगा, ठीक है ना, इंसेक्ट से या विंड से। क्लियर? ये फिर इन वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया ये वाला दिखा रखा है इन्होंने, वेलिसनेरिया एपी हाइड्रोफिली, एपी जो सरफेस के ऊपर जो आ गया, ठीक है, उसके लिए वर्ड आ गया। दिस स्टॉक है इसका, ठीक है, दिस द स्टॉक, ठीक, दिस द स्टॉक, दिस इज द मेल फ्लावर and the male flower will release the male gamete and it will carry to the female part, right, for fertilization. So female flower reaches the surface of water. फीमेल फ्लावर कहाँ पहुँच गया? वो सरफेस पे पहुँच गया, राइट, सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस पे, बाई ए लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर्स और pollen grains are released, ठीक है, pollen grains are released on the surface of water, ठीक। So here you can see it clearly, the pollen grains are released and they will move towards the flower, ठीक है। कहाँ पर चले जाएंगे? वो मेल, कहाँ पर चले जाएंगे? फीमेल पार्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, जो कि सरफेस के ऊपर जो फ्लावर आ गया। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, समझ में आई बात? जो ये पैसिवली, ठीक है, पैसिवली कैसे हुए? वाटर करंट के साथ मूव करके आ गए यहाँ पर, ताकि आगे के स्टेप्स हों, ठीक है। फिर एक कंडीशन और है, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रो का पता ही है आपको, हाइड्रो वाटर से हो गया, हाइपो लेस देन, ठीक है, अंडर वाटर वाले जो कंडीशन है, किसमें होगा? ये सी ग्रासेस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? सी ग्रासेस में। अब ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, ये देखिए फीमेल फ्लावर है अंदर, ठीक है, फीमेल फ्लावर है यहाँ पर अंदर की तरफ। तो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए इनसाइड रिबन लाइक। तो ये क्या करेंगे? ये रफ डायग्राम मैंने बनाया, ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको डायग्राम, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो, ठीक है ना। सो पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड इनसाइड द रिबन लाइक, तो रिबन लाइक होंगे, ये कहाँ गए? ये फीमेल फ्लावर की तरफ गए, और फिर क्या हुआ? इसमें पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये चीज़ जो मैंने बताई है आपको किस तरीके से? समझ में आई बात? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर? एक सेंटेंस है, ठीक है ना, एक सेंटेंस है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering,
ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होंगे, जो पोलन ग्रेन्स किससे प्रोटेक्ट होंगे, वो एक बाहर एक चिपचिपी एक कवरिंग होगी, ठीक है, कवरिंग होगी। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई जो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, राइट। जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, और ना ही क्या बनाते, वो नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। नेक्टर शुगरी सब्सटेंस जो होता है, उसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए रीज़न होगा इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेक्टर एंड फ्लावर कलर। जो इंसेक्ट वो किसको देख कर अट्रैक्ट करेगा, वो नेक्टर को देखकर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, या फिर फ्लावर कलर को देखकर अट्रैक्ट होगा। क्लियर। चलिए फिर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि क्या यूज़ करते हैं, वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को जो यूज़ करते हैं, ठीक, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल्स हो गया, वास्प्स हो गए, ठीक है ना, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स में क्या आ गया, सनबर्ड्स एंड द हमिंग बर्ड्स, ये दोनों बर्ड्स आ गई हैं। बैट हो गया, ठीक है ना। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, ठीक है, बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर इंसेक्ट के केस में, बीज पॉलिनेटिंग का काम करवा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। फिर इसके अलावा और कौन से एनिमल्स हैं, प्राइमेट्स हैं, ठीक है ना, प्राइमेट्स जिसमें लैमर्ट्स हैं, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग वाले जो हैं, रोडेंट्स हैं, और इवन रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में ये लिजर्ड आ गई या गार्डन लिजर्ड आ गई। फिर अब क्या लिखा है यहाँ पर, मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। जो मेजोरिटी है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, वो कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है, लार्ज हमें देखने को मिलेगी। इंसेक्ट पॉलिनेटेड कलरफुल होते हैं, ठीक है, फ्रैगनेंट, उनकी महक होगी, उसके अंदर नेक्टर होगा, शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। स्टिग्मा कैसा होगा उनका, स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होगा, वो स्टिकी होगा। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर्स और फ्रेगनेंस। जो एनिमल्स होंगे जो अट्रैक्ट होंगे, वो किसके द्वारा हो रहे हैं, वो कलर से या फिर उनकी फ्रेगनेंस से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, फ्रेगनेंस से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फोल टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। फिर फ्लावर पॉलिनेटेड, जो फ्लावर किससे पॉलिनेटेड हो रहे हैं, फ्लाइज से या बीटल से, वो क्या कुछ सिक्रीट करेंगे, कुछ ऐसी स्मेल, कुछ ऐसी गंध को सिक्रीट करेंगे ताकि ये एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। क्लियर। फिर क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। जो नेक्टर है, ठीक है, जो नेक्टर है, शुगरी सब्सटेंस, और पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, वो क्या है, वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। ये देखो इसमें किस तरीके से है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग है। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म भी इसका लार्ज साइज का है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये लैंड करेगा, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म लार्ज साइज। फिर क्या करेगा, ये इंसेक्ट मैंने मान लिया एक रफ बना रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इंसेक्ट है, ये क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन्स को लेकर आएगा, पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर लाएगा, अट्रैक्ट होगा इस फ्लावर की तरफ, फिर ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो इंसेक्ट क्या ले लेगा इससे, शुगरी सब्सटेंस, ठीक है ना, शुगरी सब्सटेंस ले लेगा, नेक्टर ले लेगा, और बदले में प्लांट्स क्या होगा, वो पॉलिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। व्हेन द एनिमल्स कैरी pollen on its body, ठीक है, when the animals carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about the pollination, ठीक। जैसे ही एनिमल क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, वो पोलन कैरी पोलन लेकर आएगा, उसकी बॉडी कांटेक्ट किससे होगा, फिर वो स्टिग्मा से होगा, ठीक है ना, स्टिग्मा से होगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जहाँ पर फ्लोरल रिवॉर्ड्स में क्या कर रखा है, एक सेफ प्लेस है, किसके लिए, एग ले करने के लिए, ठीक है, एक एग ले करने के लिए। एक सबसे बड़ा फ्लावर है यहाँ पर, टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलस। कौन सा फ्लावर है वो, एमोर्फोफेलस,
ठीक है। फ्लावर इटसेल्फ कितने फीट का होगा, वो 6 फीट हाइट को देखने को मिलेगा, ठीक है, 6 फीट इन हाइट, 6 फीट इन हाइट। स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड यक्का वेयर बोथ स्पीसीज, ठीक है, बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। इट मीन्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये मॉथ है, मॉथ पतंगा होता है, एंड यक्का वेयर बोथ स्पीसीज, ठीक है, बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं कर सकते। फिर द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल, ठीक है, लोक्यूल मैंने स्पेस जो होगा, ठीक है, लोक्यूल ऑफ द ओवरी। तो मॉथ क्या करेगा, वो अपने एग को कहाँ डिपॉजिट कर देगा, वो ओवरी के अंदर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, फ्लावर की। एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड, और फ्लावर भी किससे पॉलिनेट हो जाएगा, इस मॉथ के द्वारा वो पॉलिनेट हो जाएगा। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग्स, जो लार्वा होगा वो फिर कहाँ से, फिर वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है, एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। क्लियर, आई होप द टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। एक डायग्राम में आपको और दिखा देता हूँ, ये एक डायग्राम है यहाँ पर, पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, ठीक। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है ना। एक जो ये है आपको दिखा रखा है फीमेल फ्लावर है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया है ना, ये फीमेल फ्लावर हो गया यहाँ पर। एक दूसरा डायग्राम है, ठीक, बी पार्ट क्या है यहाँ पर, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन।